اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم فاعل اور مفعول کے بارے میں ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پچھلے ویڈیو میں جو دیکھے تھے وہ یہ تھا کہ جو فاعل ہے ہماری، ہم نے فاعل کے بارے میں دیکھے تھے کہ فاعل جو ہے ہماری یہ ہمیشہ حالت رفع میں رہے گی۔ فاعل یعنی جو فعل کا کام کرتا ہے، یعنی کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں رہے گا۔ اور فاعل ہم نے دیکھے تھے جو فعل کے اندر جو ہوتی اس کو مستتر بولتے ہیں۔ جو فعل کے ورڈ کے اندر ہی ضمیر کی شکل میں جو فاعل ہے اس کو ہم مستتر بولتے ہیں۔ مستتر یعنی کہ چھپی ہوئی فاعل جو فعل کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو یہ ایک فاعل ہو جاتی جو کہ اندر چھپی ہوئی ہے، اس کو مستتر بولتے ہیں۔ کوئی بھی اگر صرف فعل کا ورڈ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کی فاعل ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ضمیر جو ہے وہ ضمیر مستتر یا پھر فاعل مستتر ہو جائے گی، یعنی چھپی ہوئی فاعل۔ دوسرا فاعل کا جو ٹائپ ہے وہ یہ کہ جو ظاہر ہے، اگر نام اس کے پروناؤن کے بجائے اگر نام آ گیا، ضمیر کے بدلے میں اگر پراپر نام آ گیا تو اس کو ہم ظاہر بولتے ہیں، یعنی کہ فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے۔ اب یہاں جیسے کہ دخلا، یہاں ہم نے دخلا لیے تھے، دخلا یعنی کہ وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا میں وہ جو ہے ہماری یہ اندر چھپی ہوئی ہماری جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، یہ ضمیر فاعل ہے چھپی ہوئی۔ اب اس میں اگر ہم ہماری فاعل کو ظاہر کر دیں، وہ کا ہم نے نام دے دیے، وہ جو ہے وہ حامدن ہے، اور حامد جو ہے کیونکہ فاعل ہمیشہ ہماری حالت رفع میں رہے گی تو یہ ہماری حالت رفع ہے، تو حامد داخل ہوا، تو یہ جو فاعل ہے اس کو ہم ظاہر فاعل بولیں گے۔ یہ مستتر فاعل اور یہ ظاہر فاعل، تو دو ٹائپ کے ہمارے فاعل ہیں، ایک تو مستتر ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور جو ظاہر ہے وہ اسم کے فارم میں ظاہر ہوئی ہوئی جو فاعل ہے حالت رفع میں رہے گی وہ ہمیشہ۔ تو یہ دو ٹائپس کے ہمارے فاعل ہو گئے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا فعل ہے، فعل کی بھی دو ٹائپس ہے، ٹھیک ہے، فاعل کے دو ٹائپس ہیں، مستتر اور ظاہر، ویسے ہی فعل کے دو ٹائپس ہیں۔ جو فعل ہے یہ حساب سے ایک فعل لازم ہے اور دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی۔ یہ جو فعل لازم ہے، لازم یعنی کہ اس کے اندر فاعل لازم ہے، کوئی بھی فعل ہو فاعل لازم ہے، اور اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فعل اور فاعل مل کر ہی کمپلیٹ میننگ دے دیتے۔ جیسے کہ ہم نے یہ لیے کہ دخلا ہے، وہ داخل ہوا، بات ختم ہو گئی، وہ داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، اب اس میں اگر ہم فاعل ظاہر بھی کر دیے کہ جیسے جلسہ خالد بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جیسے کروما زیدن، تو زید جو ہے با اکرام ہوا یا با عزت ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے غضبہ یعنی کہ غصہ ہونا، حامد غصہ ہوا، یا اگر حامد نہیں ہے تو وہ غصہ ہوا، اب یہاں پر حامد ہے لکھا ہوا اس لیے حامد غصہ ہوا، تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر یہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی، سینٹنس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اس میں آگے مفعول کی اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فعل کو ہم فعل لازم بولتے ہیں، یعنی صرف ایک ورڈ میں یا ایک اگر صرف فعل ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر فعل کے ساتھ اس کی فاعل آ رہی ہے یعنی ظاہر فاعل آ رہی ہے اور وہی کمپلیٹ پورا میننگ دے دے رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں فعل لازم، ٹھیک ہے۔ اب کچھ فعل ایسے ہوتے جو مفعول ان کا آنا بہت ضروری ہوتا میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کو فعل متعدی بولتے ہیں۔ جیسے خلقہ ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا، اب اس نے پیدا کیا تو پھر اب ہمارے ذہن میں سوال اٹھ جاتا اور رہ جاتا کہ کیا پیدا کیا، تو وہاں پر پھر یہ آ جائے گا کہ خلق اللہ انسانا۔ اب خلق اللہ، یہ جو اللہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے صرف اس نے پیدا کیا بولے تھے، اب ہم نے یہاں پہ فاعل ظاہر کیا تبھی ہو گیا اللہ نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، تو یہ جو ہے یہ مفعول، اور یہاں پر اب ذہن میں ہماری وہ کمپلیٹ سینٹنس ہو گیا، بات کمپلیٹ ہو گئی کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو۔ تو جہاں پر مفعول ضروری ہے میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ ویسے والے فعل کو فعل متعدی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز یہاں پر جو سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارے جملہ فعلیہ ہے،
यानी अब ये जो फेल से जो स्टार्ट हो रहे सेंटेंसेस उसको जुमला फेलिया बोलते हैं। और इनकी जो तरतीब होती है, इनका जो सीक्वेंस होता है वो कैसा है कि फेल पहले आएगा, उसके बाद फाइल आएंगी और उसके बाद मफूल। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। फेल पहला, सेकंड फाइल और उसके बाद मफूल। ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये सीक्वेंस नॉर्मल सीक्वेंस है। अगर इसमें मफूल आगे आ जाता तो हम फिर वो देखेंगे उसका स्ट्रेस, उसका इम्पोर्टेंस वो चीज़ का बढ़ जाता। जो चीज़ पहले आ गई उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता। तो अभी तक हमने जो देखा कि फ़ाइल के दो टाइप्स है। एक तो फ़ाइल मुस्ततिर है जो छुपी हुई है, और दूसरी फ़ाइल ज़ाहिर है। ठीक है, ये दो टाइप के फ़ाइल्स है। फेल में भी दो टाइप्स है, एक लाजिम है, एक मुतादी है। लाजिम में फेल और फाइल मिलकर कंप्लीट सेंटेंस बना देते, और मुतादी फाइल में फेल, फाइल और मफूल ज़रूरी है उसकी मीनिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे, ये हमारा जो फाइल था उसके बारे में हो गया कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह मफूल के बारे में इन डिटेल तरह देखेंगे। अब मफूल हमने देखेंगे कि हमेशा हमारा हालत नसब में होता मफूल, अगर इस्म के फॉर्म में है। मफूल हमारे अगर इस्म के फॉर्म में आ रहा है तो वो हमेशा हालत नसब में रहेगा। दूसरा यह है कि मफूल हमारा ज़मीर मुंतसिल के फॉर्म में भी आता, और ज़मीर मुंतसिल के फॉर्म में ये हमेशा फेल के बाद उसको लग कर आएगा। इस्म के फॉर्म में हमने देखे थे भी, जैसे एग्जांपल देखे थे खलक़ल्लाहु इंसाना। अब इंसाना जो है ये इस्म है और ये जो है ये हालत नसब में है। तो ये मफूल तो समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। सेकंड जो मफूल बनकर आते हैं वो है ज़मीर मुंतसिल के फॉर्म में। अब जैसे हम एग्जांपल देखते खलक़ा। अब यहाँ पर खलक़कुम, खलक़ा यानी उसने पैदा किया। ठीक है, कुम तुम सबको। ये जो है कुम, ये ज़मीर मुंतसिल है और ये फेल को हमारे लग कर आई है, और ये हमारा मफूल बन गया अब। ठीक है, एक और चीज़ जो हमेशा जहन में रखने की है वो ये कि जो हमारी फ़ाइल है, फ़ाइल के उर्दू में फ़ाइल को पढ़ते वक्त हमेशा ने लगाएंगे। जैसे खलक़ा है तो उसने पैदा, और फिर जो फेल का मीनिंग है उसने पैदा किया। ठीक है, और मफूल जो है उसके साथ हमेशा को आएगा। ने हमेशा फ़ाइल के साथ और मफूल के साथ को, तो तुम्हारा जो मीनिंग है वो इंशाल्लाह करेक्ट रहेगा सेंटेंस में। ठीक है, तो खलक़कुम, उसने पैदा किया तुम सबको। ठीक है, अकला, अकला, अब यहाँ पर वर्ब मीनिंग जो है हमारा वो है टू ईट यानी खाना। अब अकला ये हमको मालूम है कि ये पूरा का पूरा हमारा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़िल माज़ी का सिगा है। ये अकला यानी कि उसने खाया, उसने खाया, हु उसको, उसने खाया उसको। अखज़ा, अब अखज़ा ये फिर फ़िल माज़ी का वाहिद मुज़क्कर गायब है। तो ये अखज़ यानी कि लेना, पकड़ना, पाना, ये सारे मीनिंग अखज़ में आ जाएंगे। तो उसने पकड़ा या उसने लिया उन सब को। यहाँ पर देखिए आपने ने का मीनिंग है फाइल के साथ, और मफूल में को का आएगा। उसने लिया, उसने पकड़ा उन सब को। ठीक है, ये वर्ड के बाद को अगर कर देंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके मफूल है। अब ये हमने देखे थे, ये जो है ये सारे जो मफूल है, जो हमारे जो ज़मीर हमने मुंतसिल जो इस्तेमाल की थी, ये सारी की गायब के सिगे की भी थी और हाजिर की भी थी। अब स्पेशली हम देखेंगे कि जो मुतकल्लिम की जो ज़मीर आती मफूल के फॉर्म में, वो फ़ाइल के बाद जो आती वो ये की शक्ल में नहीं रहती। हमारी जो ज़मीर जो है वो ये है मुतकल्लिम की, मेरे लिए, मैं, मेरा जो बोलेंगे। लेकिन जब मफूल की शक्ल में फ़ेल के बाद आ रही है वो हमेशा नी बन कर आएंगी। अब मैं एग्जांपल जैसे बताती, जअला, जअला उसने बनाया। ठीक है, अब ये कि मैं मुतकल्लिम की ज़मीर लगा रही हूँ तो मुझको। ठीक है, उसने बनाया मुझको। अब उसने, अब हम उसको जअली नहीं लिखेंगे, ये जअली नहीं आएगा लिखने में। फेल के बाद जब ज़मीर मुतकल्लिम बनती तो वो नी हो जाती। ये क्या हो जाएगा, जअलनी, उसने बनाया नी मुझको। ठीक है, जअलनी, उसने बनाया मुझको। अब जैसे रज़क़ा है, रज़क़ा
उसने रस्क दिया, ठीक है। नी मुझको, अब यहाँ पर ये मैंने ये दिखाने के लिए आपको बताई थी कि ये हमारी ज़मीर मुतकल्लिम है, लेकिन जब फेल को लग कर आ रही यही ज़मीर मुतकल्लिम नी बन जाती, ठीक है। और नी का मीनिंग क्या है? मुझको। तो उसने रिस्क दिया, रज़क़नी, रज़क़नी यानी उसने रिस्क दिया मुझको, ठीक है। अब जैसे दाआ, ये जो अलीफ है ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ये एक्चुअली वाव है। तो ये दावा, ये दाआ यानी कि ये हो जाएगा दावत देना, पुकारना, बुलाना, ठीक है। दाआ, अब ये है उसने पुकारा, उसने बुलाया। अब ये जो नी है, ये नी क्या है? मुझको। उसने पुकारा मुझको, तो ये क्या हो जाएगा? दाआनी। ये हम पढ़ने में हमेशा ही आएगा, ये मैं आपको खोल कर बता रही हूँ। वर्ड्स कुरान में आप ये ऐसे देखेंगे, ठीक है। दाआनी, नी यहाँ पर ये जो है ये क्लियर है कि ये मेरे लिए है। दाआ ये हमारा फेल हो गया, दा यानी उसने पुकारा, नी मुझको, ठीक है। अब ये जो है ये अगर टोटल नी नहीं आ रही वर्ड में, अगर पहले से ही नून है, जैसे जमा के जो वर्ड्स होते हैं उसमें अगर पहले से ही नून है तो उसके नीचे ज़ेर लग जाती। जैसे फत्तखूनी, फ यानी कि तो, अत्तखू ये अमर का सीखा, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। फत्तखूनी तो मुझसे, ये नी जो है ये जो ज़ेर है ये मुझसे डरो या मेरा तकवा करो, मुझसे डरो, मुझसे बचो। तकवा ये मैंने डरना, बचना, ठीक है। तो ये जो है फत्तखूनी तो मुझसे डरो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये हमने भी ये देखिए कि मफूल जो हमारा है इस्म के फॉर्म में आएगा तो ये हमेशा हालत नसब में रहेगा। कभी कभी जो मफूल है वो फेल के बाद ज़मीर मुंतसिल के फॉर्म में भी आते, तो वो जो है वो हमने देखे कि इसमें सिर्फ सारा जो है ये फेल को पहले जो है वो पहचानना, फेल पूरा का पूरा वैसे ही उसको ट्रांसलेट करना, उसके बाद जो ज़मीर मुंतसिल लग कर आई है उसको ट्रांसलेट करना, वो हमारी मफूल के फॉर्म में, और उसको हमेशा को के साथ करना है। जैसे खलक़कुम, उसने पैदा किया, कुम तुम सबको, ठीक है। ये मुंतसिल के साथ, मुंतसिल में एक स्पेशल फॉर्म ज़मीर मुतकल्लिम का है जिसमें कि ये जो हमारी ज़मीर की है वो फेल के साथ जब लग कर आती वो नी हो जाती, ठीक है। तो हमेशा जअलनी, रज़क़नी, ठीक है, दाआनी, फत्तखूनी, ये कुछ एग्जाम्पल्स अगर जहन में रहेंगे तो, और ये चीज़ें फिर कुरान में देखेंगे तो फ़ौरन पहचान में आ जाएगी। तो ये एक स्पेशल मुतकल्लिम जो है हमेशा नी के फॉर्म में फेल के बाद लग कर आती है, और ये हमारा मफूल है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा एक और जो स्पेशल फॉर्म है कि जैसे जो हाजिर के जो फेल के सीगे है, ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे है कि नसर तुम, ठीक है। नसर तुम यानी कि तुम सब ने मदद की, नसरा, नसरा यानी कि मदद करना। नसर तुम ये हमारा हाजिर का है, ठीक है। ये फेल माजी और यह हाजिर का जमा का सीखा है। तो तुम सब ने मदद की, हु उसकी, ये हु जो है ज़मीर मुंतसल, इसको फेल के साथ जब लग जाएगी तो ये कैसे हो जाएगा? अगर हम वैसे ही पढ़े तो नसर तुम हु, तो तुमने मदद की उसकी। अब नसर तुम हु पढ़ने में रुकना पड़ता, ये क्लियर नहीं है, तो इसके लिए क्या करते, ये जो मीम है इसके ऊपर पेश और एक वाव एक्स्ट्रा लग जाती, ये क्या हो जाएगा? नसर तुमु हु। कुरान में आप नसर तुमु हु पढ़ेंगे, नसर तुम हु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ने में आसान नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो मुँह है ये भी जमा है, ये भी जमा है, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ने की आसानी के लिए वाव एक्स्ट्रा आ गई इसमें। नसर तुमु हु यानी कि तुम सब ने मदद की उसकी, ठीक है। सअल तुम, सअला यानी पूछना, उसने पूछा, टू आस्क, उसने पूछा। तुम, अब ये जो है ये हमारा हाजिर का सीगा है फिर से, और ये सिर्फ हाजिर में ही होता है कि एक्स्ट्रा वाव लग रही, बाकी सब क्लियर वैसे ही रहेंगे। तो सअल तुम सब ने पूछा। हुन्ना, हुन्ना जो है ये औरतों के लिए आता, तो तुम सब, ये उन, तुम सब नहीं सॉरी, उन सब औरतों को, ये है उन सब औरतों को, क्योंकि ये मफूल है तो उसके साथ को आएगा, उन सब औरतों को। अब ये जब कंप्लीट कुरान में जब पढ़ेंगे ये कैसे आएगा? सअलतुमु हुन्ना, सअलतुमु तुम सब मर्दों ने पूछा उन सब औरतों को,
ठीक है, ये हमारी क्योंकि मफूल है, मफूल के साथ को आएगा, और ये जो है ये फ़ाइल के साथ हमेशा ने आएंगी। और सिर्फ हाजिर के साथ ये एक एक्स्ट्रा, और ये मुश्किल नहीं है, मतलब जब पढ़ेंगे तो ये फ़ौरन समझ में आ जाता, मीनिंग में भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हम क्योंकि ओरिजिनल जो हम पढ़ रहे वो तुम के साथ पढ़ रहे, और जब ये देखेंगे तो तुम मुँह हो जाएगा, ये पढ़ने में आसानी के लिए है। ठीक है, तो ये जो है ये एक स्पेशल फॉर्म था मफूल का। तो मफूल का हमने देखे कि इस्म के फॉर्म में अगर डायरेक्ट सिर्फ इस्म आ रही है, और ज़्यादातर सिर्फ खाली इस्म के फॉर्म में रहते, मतलब ज़्यादातर चीज़ें, तो वो हालत नसब में रहेंगे। जब ज़मीर के फॉर्म में आते तो ज़मीरें जो हैं वो लग कर आती, और आपको फिर फ़ेल आइडेंटिफाई करके फ़ेल को पहले ट्रांसलेट करो, उसके बाद मफूल को। और इसमें स्पेशल सिर्फ दो है, एक तो ज़मीर मुतकल्लिम का है, हमारा मुतकल्लिम जो है वो नी आती, नी यानी मेरे लिए आ जाएगा, फेल के बाद नी अगर आई तो मेरे लिए। और हाजिर का जो सीगा है उसमें हम देखेंगे कि तुमु जो है एक एक्स्ट्रा वाव लग कर आती। ठीक है, सिंपल है, और ये पढ़ने में बहुत आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरी अब एक चीज़ जो मफूल के बारे में है कि हमारा जो शुरू में हमने जो देखे थे कि हमारा जो जुमला इस्मिया है, या फेल का जो जुमला इस्मिया नहीं, जुमला फेलिया है, जो फेल का जो सेंटेंस है उसकी जो तरतीब थी वो है फेल, उसके बाद हमारी आएंगी फ़ाइल, और उसके बाद मफूल। फेल, फ़ाइल और मफूल ये नॉर्मल सीक्वेंस है। लेकिन अगर ये होता कि कभी कभी फ़ाइल जो है हमारी मफूल के बाद आ जाती, या बोलो कि मफूल जो है ये फ़ाइल से पहले आ गया, सीक्वेंस चेंज हो गई। ठीक है, ये एक्चुअली पीछे होना था और फाइल हमारी सामने आना था। तो ये अगर चेंज जो होने के बाद जो चीज़ सामने आ गई, यानी मफूल अगर पहले आ गया, तो वो स्ट्रेस इम्पोर्टेंस मफूल का ज़्यादा हो जाता। ये चीज़ समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ट्रांसलेशन करते तो ट्रांसलेशन में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन अब जब कुरान आप पढ़ रहे हैं और ये वर्ड्स जब आएंगे तो आपको समझना है कि जैसे ये एक एग्जांपल कि हदरल याकूबल मौता मौतू, ये हमारा फेल हो गया, हदरा यानी हाजिर हुए, वो आया। ठीक है, अब वो यहाँ पर ये देखेंगे हम, ये नसब में है, ये रफ़ा में है। तो नसब में है यानी ये हमारा मफूल है, इसके साथ हम को लगाएंगे, और ये हमारा हालत रफ़ा है, इसके साथ हम ने लगाएंगे। तो अल मौतू यानी मौत। ठीक है, डेथ, तो डेथ जो है ये हमारी फाइल है इस फेल की, तो मौत आई। ठीक है, मौत आई, और अब याकूब अलैहिस्सलाम को। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्योंकि ये मफूल में है, अब हमारा एक्चुअल, अब जब हम पढ़ते भी हैं और एक्चुअल सीक्वेंस यहाँ मौतू पहले आना था, याकूबा बाद में आना था, लेकिन लिखा हुआ कैसे है, हदरल याकूबल मौतू। तो ये जो है यहाँ पर ये बताने के लिए कि याकूब अलैहिस्सलाम पर इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, मौत को पीछे किया गया है, ये समझने की बात है। और ट्रांसलेशन में ये चीज़ नहीं आएगी, अब हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो आगे पीछे नहीं कर सकते, हम ऐसे ही करेंगे कि जब मौत आई याकूब अलैहिस्सलाम को, तो हम मौत को पहले बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन में ये चीज़ हो जाती है, लेकिन जब आप देख कर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ पर, ये स्ट्रेस यहाँ पर इस जो मफूल है पहले आ गया, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये तो अभी यहाँ पर हमने देखे कि जो मफूल है ये फाइल से पहले आया, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए फेल से भी पहले मफूल आ जाता, जैसे कि ईया का नाबुदू, ईया जो है ये पुकारने की हरूफ निदा है, या जो बोलते हैं वो ए, ठीक है, ए बोलते हैं वो ओ इंग्लिश में जैसे, तो ये जो है ये हरूफ निदा है, पुकारने के लिए, एड्रेसिंग वर्ड्स है ये। का हमारी ये ज़मीर है, यानी आप तुम। ठीक है, नाबुदू ये फेल मज़ार है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, माजी के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाबुदू यानी कि हम इबादत करते हैं। तो अब ईया का तेरी ही, अब यहाँ पर ये जो है ये जो है नाबुदू में फिर फेल और फाइल जो है ये साथ ही है, ये नहीं, ना जो है ये हमारे लिए है, अब जो है ये इबादत के लिए, तो हम इबादत करते हैं। अब ये यहाँ पर ये आ गया, मफूल जो है ये ज़मीर मुंतसिल सामने आ गई, पहले आ गई सबसे, तो हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब यहाँ पर भी पढ़ते वक्त अगर देखेंगे तो हम तेरी ही, हम पहले ये पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस किस पर है, आप पर, अल्लाह ताला पर। ये जो का ज़मीर है ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुई कि हम
तेरी ही आपकी ही इबादत करते हैं। तो ये अरेबिक जब देख कर पढ़ते, ये पढ़ने में ही समझ सकते, अरेबिक फॉर्म में ही इसका इम्पोर्टेंस आएगा। ट्रांसलेशन में ना इंग्लिश में ना उर्दू में हम इसको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकते जैसा कि इम्पोर्टेंस का दिया हुआ है। तो इसलिए हसर के इफ़ेक्ट भी है, और ये जो स्ट्रेस देने के जो इफ़ेक्ट्स है, ये चीज़ें जो है ये समझने की है, और ये अरबी में ही इसकी खूबसूरती और जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आता। ट्रांसलेशन में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन जो सीक्वेंस था कि फ़ेल है, फ़ाइल है और फिर मफ़ूल है। और जब भी मफ़ूल फ़ाइल से पहले आ गया मतलब मफ़ूल का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, अगर फ़ेल से भी पहले आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मफ़ूल का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। वरना हमारा नॉर्मल सीक्वेंस फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये हमारा जुमला फ़ेलिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह हमने फ़ाइल के बारे में और मफ़ूल के बारे में कुछ डिटेल में देख ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया देखेंगे। ठीक है।